Good morning class, welcome to Science PT School. This is your science class, and in previous class we were doing chapter number 4, that is nutrition in plants or living organism. And today we are going to start with the topic that is decomposers. What is decomposers? So some microbes decomposes the dead and decaying organic matter and convert it back to inorganic compounds by decomposition process. Decomposers clean and conserve the environment while feeding. So decomposers are very good for our environment. How it is good for our environment? So जो भी डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, सो व्हाट डिकम्पोजर्स यूज, दिस इज लाइक ए स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डिकम्पोजर्स आते हैं. डिकम्पोजर, व्हाट इज द वर्क ऑफ डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स यूज टू डिकम्पोज, मतलब मिक्स कर देना, उसको वैनिश कर देना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोज. फॉर देयर न्यूट्रिशन, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए करते हैं ऐसा, बट दैट इज वैनिशिंग ऑल द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स. तो धीरे धीरे उसको क्या कहते हैं, सड़ाते हैं एंड उसके ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए वो फीड करते हैं एंड ग्रेजुअली एवरी न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब एंड वो सब कुछ गायब हो जाता है और वो decomposers कहलाते हैं. That is the reason why it is very good for environment, because it used to clean our environment, clean and conserve the environment while feeding. अपने feeding के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, वो क्लीन कर देते हैं वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सारे डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स को सड़ा के गला के वो अपने फीडिंग के लिए यूज कर लेते हैं. दैट इज द रीजन decomposers are very important for our atmosphere. Saprozoic nutrition. What is saprozoic nutrition? In saprozoic nutrition, animals decomposes the dead and decaying organic matter and utilize it as the food. Saprozoic nutrition क्या होता है? In saprozoic nutrition, animals decomposes the dead and decaying organic matter and utilize it as the food. Same thing, decomposers में ही saprozoic nutrition भी आता है. Okay, the insects, unicellular animals, houseflies, ants and spiders. Okay. So these are decomposers. Parasitic nutrition. Now what is parasitic nutrition? Parasitic nutrition is seen in some animals. The parasitic nutrition is seen in some animals. The dependent animal is said to be a parasite, while the animal from which parasite obtains the food is called host. Parasitic nutrition is seen in some animals. कुछ एनिमल्स में पैरासिटिक एनिमल्स भी पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऑल्सो. द डिपेंडेंट एनिमल इज सेड टू बी पैरासाइट्स वाइल द एनिमल्स फ्रॉम विच पैरासाइट ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड होस्ट. तो जिसकी बॉडी के अंदर वो अपने न्यूट्रिशन के लिए मतलब लाइक करते हैं या लीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द होस्ट बॉडी. ओके, for example, suppose in our body some organism is there for that organism is good for our health, okay, but for why they are inside our body? For their nutrition. So that type of organism is called parasitic. Okay, and our body is host for them. Okay, एंड पैरासाइट टर्म इटसेल्फ मीन्स लाइक किसी के अंदर जो होता है दैट इज कॉल्ड पैरासाइट. इसके मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा या कोई डेड हो जाएगा. एनिमल स्टिल अलाइव ऑल्सो एंड देन ऑल्सो एनी पैरासाइट कैन लिव इन दैट बॉडी. जिंदे बॉडी में भी कोई पैरासाइट अपने आप को लाइक they can be there. It doesn't mean कि कोई मरे हुए बॉडी के ही अंदर वो अपने आप को एंटर करके अपना न्यूट्रिशन लेगा. नो, इन द अलाइव बॉडी ऑल्सो दे कैन एंटर एंड दे कैन सर्वाइव देयर इन द होस्ट बॉडी. Parasite does not survive without a host, therefore it will not kill the host as in case of prey and predator relationship. Okay, so अच्छा, so now what is happened? Clearly written here, parasite does not survive without host. उनका ऐसा प्रॉब्लम है कि they cannot survive वो किसी न किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे ही अपने न्यूट्रिशन के लिए. बट इट डजंट मीन कि वो पर्टिकुलर होस्ट को किल कर देगा, मार देगा. वो अपने सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए रहता है. एक्सेप्ट प्रे एंड प्रेडेटर का रिलेशन नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब उसका ईटर हो. ओके, parasites are mainly of two types, ectoparasites and endoparasites. Now what is ectoparasite and what is endoparasite?
Ectoparasite nutrition. In this type of parasite are seen living on the body surface of the host and obtaining food by sucking the blood or body juices. Example, loose bedbug, tick. Okay, so ectoparasitic क्या होता है? In this type of parasites are seen living on the body. अपने बॉडी, उसकी किसी भी होस्ट बॉडी में वो लिविंग रहेगा, जिंदा रहता है. एंड ऑब्टेनिंग फूड बाय सकिंग, अपने जो उसका होस्ट बॉडी होता है उसको सक करके वो ब्लड या बॉडी जूस से अपने आप को फीड करता है. एग्जाम्पल इसका बेड बग, टिक और लूज. डेट इज आपने पढ़ा होगा, डेट इज उसको क्या बोलते हैं, राइट नाउ आई एम नॉट रिमेम्बर. वो बेड में यू हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम किसी लकड़ियों के अंदर जाता है, वो घुन बनाता है. डेट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट, क्योंकि वो उस बॉडी के अंदर उसको सक करके उसकी जूस को पीता है एंड इट इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ घुन जो होता है. दैट इज द टाइप ऑफ एक्टोपैरासिटिक. एंडोपैरासिटिक. इन दिस टाइप पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. दे कंज्यूम द रेडीमेड वेस्टेड फूड फ्रॉम द होस्ट. एग्जाम्पल, टेप वर्म एंड राउंड वर्म. जो हमारे बॉडी में होता है, सम वर्म्स आर स्टिल देयर इन आवर स्टमक विच यूज टू फीड ऑन द फूड विच वी ईट. इसीलिए द रीजन वाई समटाइम्स देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द लाइक किड्स को जनरली दे यूज टू गिव, एक बार कीड़े की दवाई दी जाती है. दिस इज द रीजन, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर बहुत ज्यादा हो तो हमारा जो खाना होगा वो मोस्टली जो न्यूट्रिशन होगा वो वही लोग खाएंगे. सो दिस इज द रीजन to kill those. Sometimes we use that tapeworm जो हमारे स्टमक में मिलता है कभी कभी. दैट इज द रीजन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन. वो बॉडी के सक नहीं करता है, कोई अलग हार्म नहीं करता है, ब्लड नहीं सक करता है, बट व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू सक द न्यूट्रिशन कम्स आउट ऑफ द दैट डाइजेस्टेड फूड. ओके. So, have you seen small animals on the bodies of animals like dogs and buffaloes, which are those small animals? अच्छा, have you ever observed कि कभी कभी आपने देखते हो लीच या फिर ये जो किसी एनिमल्स के ऊपर कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे. सो व्हाट इज दैट, वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा? यस, ऑन द बॉडीज ऑफ पेट एनिमल्स देयर आर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फ्ली, टिक्स, माइट, समटाइम्स लीचेस आर आल्सो सीन. तो यही है एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट हमने अभी पढ़ा था कि वो अब किसी भी बॉडी के होस्ट बॉडी के ऊपर उसको सक करके लेगा. सो ये एक्सटर्नली उसकी बॉडी के ऊपर होता है. इट मीन्स दे आर ऑल्सो सकिंग समथिंग फ्रॉम द बॉडी एंड दैट इज नॉट गुड फॉर देम. ओके, ऐसा नहीं है वो मर जाएगा, बट दे विल बिकम वीक. सो दिस इज द रीजन हम जब भी देखते हैं तो वी यूज टू रिमूव ऑल दिस इंसेक्ट्स फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी. From where do these little animals obtain their food? These parasites obtain food from their host animal. अभी बताया था एक्टोपैरासिटिक होस्ट एनिमल को सक करता है, उसके ब्लड को या वाटर whatever is required for them, they used to suck from that. From where do the worms in the intestine obtain their food? Just now I told you कहाँ से worms को हमारे intestine में food मिलता है. Digestive food having useful nutrients in the host. Intestine is taken by the worms living inside the intestine of the host. हमारे intestine के अंदर वो कैरी होता रहता है. They used to survive there and they used to extract nutrition whichever मतलब जो न्यूट्रिशन हम डाइजेस्ट करके प्रिपेयर करते हैं वो worms भी लेते हैं. इसीलिए समटाइम लाइक बोला जाता है कि कभी कभी हमें वो कीड़े की दवाई यूज करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन हमें वी कैन ओनली यूज, नन ऑफ द worms कैन यूज ऑल दोज न्यूट्रिशन. ओके, ज्यादातर बच्चों की बॉडी में होता है क्योंकि द किड्स ऑलवेज यूज टू ईट लाइक समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड और समथिंग. तो वो गंदगी से वो क्या होता है, वो वर्म्स उनके पेट में चले जाते हैं, स्टमक पे, एंड दिस इज द रीजन कि बच्चों में ज्यादातर होती है ये वर्म्स. ओके, that's all for today, and with this we have completed this chapter. In next class we will start with the question and answer. So till the time start revising the chapter so that write down all the like important points whatever you find it in this chapter. You can note down into your notebook, learn it, go through the chapter so that when we will do the questions you will be better clear with all the concepts. So till the time, take care.